Huh. Good afternoon, everyone. Last lecture, we have seen how to construct Hamming code using a binary coded decimal. Now, one thing that I want to add here, uh, in case if you take another example also, then you can solve it using the same technique. And also, one thing, in case if the number of input bits are increases, you need to extend the length of bit position. Means original BCD या बाइनरी नंबर का बिट पोजीशन अगर 4 की जगह 5, 6 या 7 बिट जाता है, तो वैसे आपको वहां पर टोटल नंबर ऑफ पैरिटी इंक्रीज होंगे. तो उसी सिलसिले में और एक एग्जांपल आपका कवर करता हूं. सी एग्जांपल रहेगा, encode the binary word 11001 into even parity Hamming code. Getting the point? Getting the problem? Okay, write down in your notebook in case if you are writing side by side. Though it is rough, no problem, because rough writing will be also one of the additional practice. So, what is the problem? Encode a binary word 11001 into even parity Hamming code. Now here, how many number of bits are here? Total number of bits are 5. 11001 is equivalent to 5 number of bits. So that's why the value of n is given. N is equal to 5. Any doubt? Now come to the next point. Now we are going to find the number of redundant bits. How many redundant bits will be required? In last problem, there are 4 bits. That's why we have taken p is equal to 3. Now 1 bit is increased. So that's why that time we did calculation 2 raised to p. 2 raised to p is nothing but 2 raised to 3. 2 raised to 3 is equal to 8. So that's why here n plus p plus 1 means n is 3. Sorry, n is 4. P is 3. Total 4 plus 3 plus 1, 7. Okay. Total 4 plus 3, 7 plus 1, 8. So that's why here total number of bits are 8. Means 2 raised to p, 8 is greater than or equal to 8. Okay. So that's why both are same. So that's why we did it very easily. Now 2 raised to, now here n is 5, means if we consider p is 3, 5 plus 3 is 8 plus 1 is 9, means 2 raised to 3 is greater, means 2 raised to p is greater than. Okay, so that's why here greater than or equal to, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगा. गेटिंग? सो इस वजह से यहाँ पर मैं फिर से पैरिटी को इंक्रीज करने जा रहा हूं. सो हियर पैरिटी हम अज्यूम करेंगे total 4 bits will be there. So p is equal to 4. Now if we try with p is equal to 4, we will check the equation is satisfied, and so 4 redundant bits are selected. Okay, here
2 raised to p should be greater than or equal to n plus p plus 1. So here 2 raised to p is near about 16, and it is greater than or equal to value of n is 5, p is 4, and plus 1, it will becomes 9. So 2 raised to p is greater than or equal to n plus p plus 1. This condition is satisfied. So that's why I return the equation is satisfied, and so 4 redundant bits are selected. Okay. Now, so total code bit is equal to n plus p is equal to 9. Okay. So that's why here we will go for next one step. Now here I highlighted one line. The redundant bits are placed at position 1, 2, 4, 8. ओके, रिडंडेंट बिट्स का यहाँ पर पोजीशन 1, 2, 4, 8 में प्लेस है. अभी मैं यहाँ आपको दो फॉर्मेट बताए थे बीट लोकेशन के, आइदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट. गेटिंग? मैं यहाँ सेकंड फॉर्मेट यूज कर रहा हूँ आपको एक्स्ट्रा यहाँ बताने के लिए. रिपीट नहीं कर रहा हूँ. कैसा? पहले प्रॉब्लम में बता देता हूँ. पहले प्रॉब्लम में 1, ओके, 1 यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में था, 7 राइट हैंड साइड में था, P1 P2 N1 P3 N1 N2 N3 N4 इस तरह लिखा था, है? याद है? अभी यहाँ इस प्रॉब्लम में 1 राइट हैंड साइड में है, 9 लेफ्ट हैंड साइड में है, P1 राइट हैंड साइड में है. इस तरह लिख रहा हूं. दोनों वे चलते हैं, दोनों वेज में चलेगा, कोई ट्रबल नहीं रहेगा. ओके. प्रोसेस सेम रहेगी. प्लेसिंग कर रहा हूं. फर्स्ट प्लेस पर P1, सेकंड प्लेस पर P2, थर्ड प्लेस पर D1 लो या N1 लो, नो प्रॉब्लम. ओके. देन फोर्थ प्लेस पर P3, फिफ्थ प्लेस पर N2, सिक्स प्लेस पर N3, सेवन प्लेस पर N4, एट्थ प्लेस पर P4 एंड नाइन्थ प्लेस पर N5. ओके, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई चेंज इट. नाउ below column shows, below row shows, okay, binary representation. I am just highlighting you for your understanding point of view. 1 will be written as 0001, 2 will be written as 0010. As just I am repeating the binary table that I already show you with error position. ओके, तो वो वहां का बाइनरी टेबल यहाँ पर है. ओके, कोई डाउट? तो वह बाइनराइजेशन नंबर यहाँ लिखे हैं. 0 के लिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने कल कहा 0 के लिए एरर पोजीशन नहीं रहती है, 0 में एरर नहीं आता है. ओके, गेटिंग एवरीवन? नो. अभी इंफॉर्मेशन बिट्स पुट आउट करते हैं. इंफॉर्मेशन बिट्स यहाँ पर आपको जो डाटा दिया है 11001, ये डाटा पुट आउट करते हैं. तो 1 जो है लेफ्ट हैंड साइड का, तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं. ओके, हमारा 1 रहेगा 9 बिट के ऊपर, सेकंड 1 रहेगा 7 बिट के ऊपर, 0 रहेगा 6 बिट के ऊपर,
5 रहेगा 0 बिट के ऊपर एंड 1 रहेगा 3 बिट के ऊपर। अच्छा, प्लेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिट शायद सबको समझ में आया है। किसी को नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करना। आई होप मैं ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ समझाने के लिए। माय वीडियो इज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड स्लो। ओके, तो आई होप एवरीवन इज watching the screen right now. Now I am going for finding the parities. How I find parity? Last lecture I explain you, again I am explaining you the same thing. Now we are going for calculation of p1 parity bit के लिए मुझे फाइंड करना है कि भाई p1 क्या आएगा। नाउ इन केस आपके पास अगर रफ नोटबुक होगा, पेन लीजिए और उसमें लिखिए मैं जो जो नंबर आपको बोलता हूं। हॉरिजेंटल में लिखिए 1 3 5 7 लिख लिया 1 3 5 7 और हमें यहां पर और एक एडिशनल लिखना पड़ेगा क्योंकि 9 तक जा रहे हैं, तो 9 1 3 5 7 9। ओके, मैं आपके एडिशनल यहाँ पर लिखता हूँ नीचे। ओके, यू कैन एबल टू सी। ओके, आई एम राइटिंग हियर 1 ओके फॉर p1 what I am writing 1 3 5 7 9। नाउ लिख लिया आपने रफ नोटबुक में। अभी रफ नोटबुक में लिखने के बाद अभी मैं यहाँ पर 1 के नीचे आपको यहाँ कुछ सजेस्ट नहीं करूंगा, यहाँ कुछ मत लिखिए 1 के नीचे, क्योंकि 1 हमें फाइंड करना है। 1 यानी ये p1 है, ये p1 हमें फाइंड करना है। ओके, सो दैट्स व्हाई मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। गेटिंग एवरीवन? हाँ, अभी मैंने यहाँ पर स्पेस भी कर दिया। गेटिंग? नाउ 3 के नीचे लिखेंगे 3 कॉलम को, देखिए वहां थर्ड नंबर के कॉलम को वहां पर लिखा है 1। ओके, बाद में 5 नंबर के कॉलम के देखेंगे वहां पर लिखा है 0। बाद में 7 नंबर के कॉलम पे लिखा है 1। बाद में 9 नंबर के कॉलम पे लिखा है 1। अभी 3 5 7 9 में कितने टोटल नंबर ऑफ वंस हैं? कितने टोटल नंबर ऑफ वंस हैं? काउंट करिए। 3 के नीचे है 1 पहला, 7 के नीचे है 1 दूसरा, 9 के नीचे है 1 तीसरा। टोटल काउंट कितना आया? 3। 3 is a odd number, so as it is odd number, so our p1 value is odd के लिए 1 है। गेटिंग एवरीवन? सभी को क्लियर हो गया? सभी को क्लियर हो गया? नाउ एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, सो दैट्स व्हाई आई थिंक दैट everyone has cleared this point. So that's why p1 की वैल्यू वहां पर पहले कॉलम में पैरिटी बिट्स में लिखी है 1। गेटिंग एवरीवन? now see, we will go for p2। p2 के लिए चलते हैं। p2 के लिए बिट्स लेंगे 2 3 6 एंड 7। आगे उसके नहीं है, 11 है डायरेक्ट, इसलिए वहां वो नहीं ले सकते हैं। लिख लिया आपने रफ नोटबुक में। अभी
2 के नीचे लिखता हूं P2, क्योंकि आई एम फाइंडिंग P2 वैल्यू। P2 की वैल्यू मुझे क्या मिलनी है, ये मुझे फाइंड करनी है। नाउ 3 का वैल्यू आपको पता है, ओके 3 का वैल्यू आपको पता है। थर्ड कॉलम में इंफॉर्मेशन बिट है 1। 6 में 6 कॉलम में इंफॉर्मेशन बिट की वैल्यू है 0। 7 कॉलम में इंफॉर्मेशन बिट की वैल्यू है 1। ओके, अभी टोटल नंबर्स ऑफ वंस फाइंड आउट करिए, कितने आ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ वंस? 2। 3 के नीचे 1 है, 7 के नीचे 1 है, कुल मिलाकर हो गए 2। 6 के नीचे 0 है, इसलिए वहां वो काउंट नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई इज इवन नंबर। सो एज इट इज इवन नंबर, तो P2 की वैल्यू क्या हो गई? P2 की वैल्यू हो गई 0। ये हमने यहाँ फाइंड की है भाई, किसी को डाउट? राइट, नाउ वी विल गो फॉर पैरिटी 3। पैरिटी 3 के लिए पहला बीट है 4, बाद में है 5, बाद में है 6 और बाद में है 7। ओके, चलिए लिखते हैं यहाँ पर 4 के नीचे P3। ओके, 5 के कॉलम में इंफॉर्मेशन बिट की वैल्यू है 0। 6 कॉलम में इंफॉर्मेशन बिट की वैल्यू है 0 और 7 कॉलम में इंफॉर्मेशन बिट की वैल्यू है 1। सो दैट्स व्हाई टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ वंस हुए 1। 1 इज ऑड नंबर। ओके, सो एज इट इज ऑड नंबर, सो दैट्स व्हाई P3 की वैल्यू हो गई यहाँ पर ऑड के लिए 1। गेटिंग एवरीवन? हाँ, नाउ लास्ट बच गया पैरिटी। सो दैट्स व्हाई फॉर P4, P4 के लिए P4 के लिए अभी शायद आपको यह समझ में नहीं आएगा कि भाई P4 यानी फोर्थ बिट है। चलिए मैं आपको यहाँ आपके सामने कॉलम लाता हूँ फोर्थ बिट का। ओके, फोर्थ बिट के लिए सी आई एम गिविंग यू, शोइंग यू द लास्ट टेबल। दिख रहा है सभी को? हाँ, P4 में ये बिट है। अभी अपने पास टोटल 9 तक बिट है, तो इसलिए यहाँ पर P4 के साथ साथ 8 के साथ 9 आएगा। ओके, नाउ 8 और 9 के लिए आपको वहां फाइंड करना है P4 बिट का वैल्यू। चलिए, तो यहां मैं लिख रहा हूं 8 और 9। 8 के नीचे लिखता हूं P4, 9 के नीचे लिखता हूं 1। 9 कॉलम में इंफॉर्मेशन बिट की वैल्यू है 1। सो दैट्स व्हाई मुझे टोटल टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हुए यहाँ पर? एक ही है, एक ही है, इस वजह से इट इज ऑड नंबर। सो दैट्स व्हाई P4 की वैल्यू आप बताओ। ऑड के लिए देखिए ऊपर 1 लिखा है, सो दैट्स व्हाई ये 1 रहेगा। तो अभी आपका यहाँ पर
कुल मिलाकर आपका यहाँ पर हैमिंग कोड, हैमिंग कोड लिखता हूँ, हैमिंग कोड आएगा आपका। इंफॉर्मेशन बिट है 1, P4 बिट है 1, 7 बिट है 1, 6 बिट है 0, 5th बिट है 0, 4th बिट है 1, 3rd बिट है 1, 2nd बिट है 0 और 1st बिट है 1। यानी ये हो गया आपका हैमिंग कोड जो मैंने अभी यहाँ हाईलाइट किया। ओके, सो दैट्स व्हाई encoded 9 बिट हैमिंग कोड इज, जस्ट मैंने हाईलाइट किया स्क्रीन के ऊपर। ओके, सभी लोग देख रहे हो, रेड कलर में इंडिकेट कर दिया मैंने उसको। ओके, तो यहाँ आपका हैमिंग कोड आएगा यहाँ 111001101। गेटिंग एवरीवन? एनी डाउट? ओके, I hope you have getting this idea how to find the Hamming code. Okay. Next point that we are discussing is how to detect and correct the error in the Hamming code. Now ये point आपका रहेगा, अगर आपने हैमिंग कोड ट्रांसमीटर के द्वारा ट्रांसमिट किया, after reception, after receiving this code at the receiver side, question arise, how I will get the original message, how will I identify whether the message is correctly received or not. So that's why now I am giving you process of decrypting a message in Hamming code. Okay, so here listen carefully. Receiver gets incoming message which required to perform recalculation to find and correct error. आप जब रिसीवर साइड में इंफॉर्मेशन रिसीव करोगे तो आपको फिर से रिकैलकुलेशन करना पड़ेगा वेदर योर डाटा इज करेक्टली रिसीव्ड और नॉट। ओके, सो ये कैलकुलेशन प्रोसेस क्या रहेगी, कैसी रहेगी? सी अगेन, हियर आई एम गिविंग यू 3 स्टेप्स। फर्स्ट is count the number of redundant or parity bits. आपको जो रिडंडेंट या पैरिटी बिट्स हैं वह काउंट करने रहेंगे। सेकंड पॉइंट, करेक्टली पोजिशनिंग ऑफ ऑल रिडंडेंट और पैरिटी बिट्स। ओके, आपको वहां पर करेक्शंस कैरी आउट करना पड़ेगा, करेक्शंस देखना पड़ेगा कि भाई मैंने यहाँ पर पैरिटी या रिडंडेंट बिट्स एग्जैक्ट पोजीशन में रिसीव किए हैं या नहीं। और आखिरी रहेगा पैरिटी चेक। चलो एक एक समझा देता हूं हर स्टेप्स को। ओके, रफ नोटबुक में होगा, लिखना होगा तो लिखते रहो। पहला स्टेप हाईलाइट कर रहा हूं। स्टेप 1, counting the number of redundant bits. Okay, so how you can count the number of redundant bits? Here for that you can use the same formula for encoding the number of redundant bits are 2 raised to p is greater than or equal to n plus p plus 1. Same formula we are adopting here also. So p indicate total number of parities, n indicates
data bits, information bits, message. Okay, so you need to do verification. How many number of redundant bits will be received? Okay, so here the number of data bits and p is the number of, okay, here n is the number of data bits, n is the number of data bits and p is the number of redundant bits. Okay, now after this first step we will go for second one. We place redundant bits at their correct position that I said you. It will be in the power of 2. So that's why here p is the redundant bits which is located at the position of power of 2. Okay, for example, 2 raised to 0 is 1, 2 raised to 1 is 2, 2 raised to 2 is 4, 2 raised to 3 is 8, and so on. So इस पोजीशन में आपको रिडंडेंट बिट्स को P1, P2, P3, P4 को पुट आउट करना है, राइट? नाउ ये तो समझ में आ गया। पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट एग्जैक्टली सेम है, अपने को कुछ पेन लेना नहीं है। जैसा इनकोडिंग के वक्त किया वैसा ही डिकोडिंग के वक्त कैरी आउट करना है। थर्ड पॉइंट भी पैरिटी चेकिंग का एज इट इज ही है, उसमें आपको पैरिटी बिट का कैलकुलेशंस कैरी आउट करना है। तो मैंने लिख के दिए फॉर P1 पैरिटी बिट्स आर 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। फॉर P2 पैरिटी फाइंडिंग 2, 3, 6, 7, 10, 11 bits are referred, and for P3 here 4 to 7, 12 to 15 and 20 to 25, 23 bits are referred. अभी अगर 8 बिट का, 9 बिट का, 10 बिट का डाटा है तो आपको उस हिसाब से जाना है, आगे ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। आपको तीनों स्टेप समझ में आ गई? आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। नाउ वी विल अंडरस्टैंड वन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के द्वारा आपको इजीली समझा देगा। So here example is given. If the Hamming code sequence 1100110 is transmitted and due to error in one position is received as 110110, locate the position of error bit using parity check and give the method for obtaining the correct sequence. आपको ओरिजिनल मैसेज भी दिया है, रिसीव्ड मैसेज भी दिया है। ओरिजिनल मैसेज है 11001110 और रिसीव्ड मैसेज दिया है 11101110। बाय ऑब्जर्वेशन यू गॉट द पोजीशन, बट हमें मैथमेटिकली प्रूव करना है कि भाई यहाँ ये आपको कैसे मिलेगा। ओके,
अभी मैं आपको यहाँ पर एक 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 यहाँ बात बताते जाता हूँ। सी, टेबल लिया मैंने आपके सामने। आप अगर रफ नोटबुक पे होंगे तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पोजीशन। ओके, 1 2 3 4 5 6 और 7 पोजीशन मैंने लिख ली। ओके, पोजीशन के बाद ओके, रिसीव्ड बिट्स लिख रहा हूं। ओके, हाँ सॉरी, रिसीव्ड बिट यहाँ पर लिखने से पहले मैं यहाँ पर पोजीशन लिख लेता हूं। ओके, पोजीशन 1 की पोजीशन है P1 की, बराबर। देन P2, देन N1, देन P3, देन N2, then N3, then N4. I hope everyone got the idea from this. Okay, now I am putting here the received bits. Received bits मैंने received किए हैं 1 1 1 0 1 1 0। आ गई समझ में सभी को बात? ओके, अभी अपने को यहाँ पर ये फाइंड करना है कि भाई मुझे यहाँ अभी एरर कैसे डिटेक्ट करना है। देखो, किताबों में पूरी बात नहीं है। आपके सामने किताब की कॉपी, फोटोकॉपी है। समझ में आया क्या? देखो, नहीं। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू सॉल्यूशंस। गॉट इट एवरीवन? नो, अभी चलते हैं हम फाइंडिंग के लिए। ओके, now first we will go for P1. We will check P1. Which bits are there for P1? Which bit position, checking positions are given for P1? 1, 3, 5 and 7. Now we need to verify here whether P1 has one bit. P1 have received bit is 1. So that's why, is it correct? Okay, अभी मैं यहाँ पर P1 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि now we are going to receive it. Okay, we have received data. So that's why we know P1. So that's why यहाँ P1 का वेरिफिकेशन करना है। जो डाटा मिला है उसका भी वेरिफिकेशन करना है कि आपको एरर कहाँ पर है, ये फाइंड भी करना है। ओके, सो दैट्स व्हाई यहाँ हम देखने जा रहे हैं कि भाई एरर कहाँ है। ओके, सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ एरर ढूंढने जा रहा हूँ। सो दैट्स व्हाई वहाँ फर्स्ट कॉलम का 1 नंबर कॉलम का यहाँ पर बिट वैल्यू पुट आउट कर दिया 1, 3 की वैल्यू पुट आउट कर रहा हूँ 1, 5 की वैल्यू पुट आउट कर रहा हूँ 1, 7 की वैल्यू पुट आउट कर रहा हूँ 1। So how many ones are here? Okay, how many ones are here from 1 3 5 7? Okay, your answer is 3. 3 ones are here, so that's why 3 is odd number, right? 3 is odd number, so that's why here we will get अभी आपको क्या मिल रहा है? एरर पोजीशन मिल रही है। जो टेबल मैंने आपको बताया था
टेबल बताया था मैंने वहां आपको, कौन कौन सा बिट पोजीशन दी थी, बिट पोजीशन दी थी आपको। टेबल के ऊपर लेकर जा रहा हूं फिर से, टेबल के ऊपर इसलिए लेकर जा रहा हूं कि आपको वहां पर फिर से वह टेबल, फिर से एक जैसा मैंने बताया था वो टेबल आपको लेकर जा रहा हूं। यहाँ ये है टेबल, यहाँ है एरर पोजीशन, यहाँ है बिट की पोजीशन। आपने क्या चेक कर लिया? P1। आपने क्या चेक कर लिया? P1। आपने ये बिट पोजीशन चेक कर ली है, आपने ये बिट पोजीशन चेक कर ली है, तो आपने P1 का पोजीशन यहाँ पर चेक कर लिया है, वो आया है ऑड, बराबर है। सो दैट्स वाई आपको यहाँ पर ये नंबर मिला है, ये पोजीशन, यानी आपको यहाँ पहला नंबर मिला है। तो वो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि कौन सा ये बाइनरी सीक्वेंस हम यहाँ फाइंड करने वाले हैं। गेटिंग? चलता हूं मैं अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर। सी प्रॉब्लम्स के ऊपर आइए। हम यहाँ पर वह बीट पोजीशन ले रहे हैं, ऑड नंबर के लिए है 1। गेटिंग एवरीवन? अच्छा, कोई डाउट होगा तो पूछिए मुझे। जिसको समझ में आया वो यहाँ पर हा बोलेगा, नहीं हो समझ में आया होगा डोंट बॉदर अबाउट इट, देखते रहो फिर से वीडियो। ओके, क्योंकि मैंने सभी बात यहाँ पर समझा दी है। सेम पोजीशन हम P2 के लिए जा रहे हैं। फॉर P2, P2 के लिए चेकिंग बिट्स है 2, 3, 6 और 7। गेटिंग एवरीवन? फॉर P2 के लिए चेकिंग बिट्स है 2, 3, 6, 7। 2 कॉलम में 2 का P2 का वैल्यू है 1, 3 का वैल्यू है 1, 6 का वैल्यू है 1, 7 का वैल्यू है 1। सो हाउ मेनी ones are here? Your answer is, how many ones are here? Total 3. Again, 3 is odd or even? It is odd. So that's why as it is odd number, you will get 1. So odd के लिए हम वैल्यू रखेंगे 1। अभी नेक्स्ट यहाँ पर जा रहा हूं फाइंड करने थर्ड पोजीशन। एरर कहाँ है? एरर की पोजीशन हम फाइंड कर रहे हैं। एरर की पोजीशन यहाँ फाइंड करने के लिए मैं P3 को भी फाइंड कर रहा हूँ। P3 कौन से बिट्स के ऊपर फाइंड किया जाता है? 4, 5, 6 और 7। चलिए 4, 5, 6, 7 का बिट पोजीशन, रिसीव्ड बिट पोजीशन बताइए। 4 के लिए रिसीव्ड हुआ है 0, 5 के लिए रिसीव्ड हुआ है 1, 6 के लिए रिसीव्ड हुआ है 1, बराबर है। ओके, और 7 के लिए आपने रिसीव्ड किया है 0। ओके, तो फिर से यहाँ पर मुझे बताइए, हाउ मेनी वंस आर हियर? कितने वंस है भाई? यहाँ पर मुझे टोटल नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं, आपके द्वारा मुझे आंसर मिला 2, बराबर है। 2 है वंस इस टोटल सीक्वेंस में, बराबर। सो दैट्स व्हाई 2 इज even number. If it is even number, for even number we will represent it with the help of 0. Okay, so here we have 3 bits. ओके, अभी मैं यहाँ पर 3 बिट्स यहाँ पर मेरे पास है, तो 3 बिट्स यहाँ कौन कौन से है? मैं बॉटम से ऊपर जा रहा हूँ, बॉटम से P3 से। सो दैट्स वाई P3 वाला बिट से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए
P3, P2 और P1। P3 का बिट्स है आपके पास यहाँ पर, P3 का बिट्स है, ये इधर ही लिखता हूँ, इज इक्वल टू 0 1 1, बराबर। सभी को समझ में आया? 0 1 1। अभी मैं यहाँ पर सभी की बाइनरी पोजीशन लिखता हूँ। बाइनरी पोजीशन ऑफ 1 क्या है? 0 0 1। बाइनरी पोजीशन ऑफ 2 क्या है? 0 1 0। बाइनरी पोजीशन ऑफ 3 क्या है? 0 1 1। बाइनरी पोजीशन ऑफ 4 क्या है? 1 0 0। 5 के लिए 1 0 1। 6 के लिए 1 1 0। 7 के लिए 1 1 1। ये बाइनरी पोजीशन। अभी हम यहाँ एरर लेने जा रहे हैं। एरर कहाँ पर है? सो रिमेंबर, एरर इज प्रेजेंट at 0 1 1 position. At 0 1 1 position we got 1. Okay, so that's why this one is here wrong. Okay, this one is wrong. मैंने उसको हाईलाइट कर दिया यहाँ पर. Okay, so that's why this is wrong. Okay, so that's why we need to correct it. So that's why corrected received bits are okay. सो यहाँ पर करेक्टेड रिसीव बिट रहेगा आपका 1 की जगह क्या रहेगा? 0, यानी 1 आपको रॉन्ग रिसीव्ड हुआ है। 1 की जगह आपका 0 बिट रहना चाहिए था। इस वजह से आपको वहां ये इवन बताया गया। इस वजह से आपको ये एरर पोजीशन बताई गई। ये एरर पोजीशन जहां है वहां आपको वह अर्लियर बिट रिप्लेस करना है अपोजिट बिट से। यानी 1 होगा तो 0, 0 होगा तो 1, और रेस्ट बिट I am keeping as it is because they have no error. So that's why this is my corrected received bits. Okay, so that's why if you check with your book is also saying 1 1. See यहाँ पर 1 1 0 0 1 1 0 is your correct data. Getting everyone? कोई डाउट भाई किसी को? ओके, सो दैट्स वाई इस तरह आप हैमिंग कोड का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अगर किसी को कोई डाउट रहा तो यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप और यू कैन पर्सनली कॉन्टैक्ट। ओके, गेटिंग एवरीवन? और एक बात आगे, और एक प्रॉब्लम यहाँ पर लेता हूं, आपको आएगा अभी ये, आप यहाँ सॉल्व कर सकते हो। प्रॉब्लम है, देखिए उसमें ए प्रॉब्लम यहाँ पर है। एग्जाम्पल, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बीसीडी डिजिट 0110 एंड 0111। अभी 0110 के बाद आता है 0111, यानी आपको यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन बीसीडी डिजिट पूछा है। सॉल्यूशन में दिया है द डिस्टेंस बिटवीन द बीसीडी नंबर इज 0110 और 0111 is 1 since only LSB is different. Getting orally ही इसका आंसर आ गया। सेकंड, determine Hamming code for 0110 and 0111 and find the distance between them using even parity. अभी आपको 0110 का Hamming code फाइंड आउट करते आएगा, 0111 का भी Hamming code फाइंड आउट करते आएगा, और उन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी फाइंड आउट करते आएगा। आंसर सामने है, वेरीफाई करो। ओके, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। So that's why I think that you are now a master just by watching my video. So you can able to solve these problems. Okay, so I hope
everyone listen carefully, you have to solve it, you have to understand it. अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो बार बार दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो, समझ में आएगा। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, प्रॉब्लम वेरी इजी है, मैंने इसको एकदम क्लियरली क्लियर करके आपको समझाया है। ओके, सो thank you very much for listening, thank you very much for watching, and give your attendance in the comment box. Okay, don't forget to give your attendance in comment box. Your attendance is also important. Watch it from beginning to end. Okay, otherwise don't just click it and just write down the comment, otherwise समझेगा कुछ भी नहीं। Okay, thank you very much.